Assalamu alaikum students. Today I am discussing a topic that is conditional statement. So conditional statement, last time we have discussed about the loops in pseudocode, and this time we are discussing that is conditional statement, and this topic is basically related to your P2 paper. Okay, and basically conditional statement are very easy and interesting, and we use them very much in normal life. So let's start. So here conditional statement basically are used where to decide which action to perform on which criteria. So what is an action and what is the criteria? So we understand this through an example. So here's an example that if a patient has shortness of breath and one more, that is chest pain, so that he might be a patient of corona. So here is the condition, and we can say criteria, that is shortness of breath, and the second one is the chest pain. So if though both condition are true, then he might be a patient of corona. Okay, so this is the condition. On the basis of these two condition, if though these two both condition are true, then the action performed, then that is he might be a patient of corona. Okay, so this is called the condition statement, and now this one, here are the two basically form of conditional statement. First is if then else and if, and the second one is case of otherwise and case. So here is the first one, that is if then else and if. This is the first form of the conditional statement. Okay, so here is the task, that is determine a person is a voter or non-voter. So through example, through task, we can understand in a better way. So here on basically हम किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करते हैं कि वो वोटर है, पर्सन इज़ अ वोटर और नॉन वोटर. सो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? बेसिकली एज की बेसिस पे. ठीक है, सो एज, इफ़ द एज इज़ more than 18 or equal to 18, then he is eligible to cast a vote. And if the age is not greater than, or we can say less than 18, then he is not eligible to cast a vote. So this is the condition we know very well. So here is the input. First we are taking the variable for age. Okay, so I am taking directly the variable that is age. Okay, so input age. If this age is greater than or equal to 18, then action perform, this action will perform, that is print voter. Otherwise in otherwise option, that is less than 18. Okay, then come on this part of the pseudocode. Okay, and then and if. So these basically here is the, this is a keyword if, this is a keyword and here is also. Okay, so basically if this condition is true, so perform this action, then perform this action. If this condition is true, then perform this action. Else, if this condition is not true, then come on this part of the pseudocode and then perform this action. Okay, so if अगर एज जो है आपकी वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, दिस इज द ऑप्शनल हेयर between these are the basically this one is the relational operator. Okay, so first you will revise the relational operator and then you will basically इसके बाद ही आप समझ सकोगे ये प्रोग्राम. Okay, so basically here are the greater than or equal to operator and relational operator basically. So here is the optional, that if for example अगर एक आता है, कोई भी बंदा आता है तो उसकी एज जो है वो 19 है. ठीक है, सो 19 कंपेयर होगा ग्रेटर से. ठीक है, और इक्वल टू पे नहीं जाएगा, दोनों से कंपेयर होता है. जो चीज़ राइट हो जाती है फिर वो परफॉर्म टास्क हो जाता है. ठीक है, एंड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18 एग्जैक्टली 18 आती है, तो 18 ग्रेटर देन नहीं है लेकिन वो इक्वल टू है. ठीक है, देन परफॉर्म दिस टास्क. ठीक है, सो मीन्स ये है कि यहाँ पे अगर दोनों ऑपरेटर हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ बीच में हम कह सकते हैं कि यहाँ और का साइन है.
ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन है कि आप या तो इससे भी कंपेयर करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे, और जो भी राइट हो जाएगा देन परफॉर्म हो जाएगा ये वाला टास्क, जो भी राइट हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी राइट नहीं होता तो आप फिर एल्स की तरफ आ जाएंगे, यानी लेस ही रह जाता है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है प्रोग्राम वो यहाँ से एल्स कंडीशन में आ जाएगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सो इफ़ फर्स्ट वी आर टेकिंग इनपुट एज, इफ दिस एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, yes, for example 19 वाला बंदा 20 वाला बंदा कहता है तो 20 is greater than 18, okay। So then print the voter, and else if the person come with the age of 14, okay, so 14 is not greater than 14 is not equal to 18, so come on this part, that is else part, okay, and print non-voter, okay। So if this condition is true then perform this task, if this condition is not true come on this action, okay। So and if the last statement, जिससे हमें पता चल रहा है कि आपकी statement जो है वो end हो गई है, so this is also a necessary part of your if then else, okay। So now come on the flow chart। फ्लो चार्ट आप लोग 6-7 ग्रेड 8 में करते आ रहे हो, 6 से लेके 8 तक, बल्कि ग्रेड 5 में भी आप लोगों ने फ्लो चार्ट के बारे में अच्छा खासा पढ़ा था। सो हेयर इज़ द फ्लो चार्ट criteria, basically not a criteria, these are the symbols, this is the start and box, that is oval we can say, okay। So this is the oval and this symbol is used for start and end, okay। So start हमने किया है, and this is the parallelogram, and this one is used for input and output या print कह लो, ठीक है। So first हमने क्या किया है, आपने input लिया age, यहाँ पे हमने एज इनपुट ली थी, देन हमने क्या किया, यहाँ पे डिसाइड किया है। सो दिस इज़ द डिसीजन बॉक्स। अगर कोई डिसीजन है आपके प्रोग्राम में, जैसे हमारा इनपुट एज के बाद यहाँ पे डिसीजन था, हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है। सो हमें डिसाइड करना था, सो यू इंसर्ट दिस पार्ट इन दिस डिसीजन बॉक्स, दैट इज़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, okay। So if this age is greater than or equal to 18 then perform this one, okay, otherwise you will come on this part, okay। So for example here are the 19 age, if the person come with 19 age, so 19 is greater than or equal to 18, yes greater than, so come on this part, that is print voter and then stop, because एक ही हम ले रहे हैं एज, हमारा कोई लूप नहीं चल रहा, so वो एक ही दफ़ा फ्लो करके एंड हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इफ़ द ए दोबारा हम एग्जीक्यूट करवाते हैं अगर प्रोग्राम को, सो अगर 15 वाला आता है एक पर्सन, ठीक है, सो 15 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नो नहीं है, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रिंट नॉन वोटर एंड देन स्टॉप। सो दिस इज़ द ईजी, this is very easy condition, that is if then else, okay। Now come to the next one, that is display a number is positive or negative। so first we are taking a number obviously जिससे हमने कंपेयर करवाना है, ठीक है, बेसिकली जिस जो कंपेयर होगा, ठीक है। सो हमारा क्या है, फर्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे नंबर लिया है, और नंबर को हम कंपेयर कैसे करवाएंगे, ज़ाहिर बात है हमें एक नंबर लेना पड़ेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है कि ज़ीरो से जितने छोटे होते हैं नंबर, लेस देन नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ज़ीरो, वो हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और ज़ीरो से जितने ही बड़े होते हैं मीन्स ग्रेटर होते हैं, तो वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। सो हेयर first we are taking input number, and then if that number that we are taking input, okay, that number is greater than 0 then perform this task, then perform this action, okay। else अगर वो less than है, ठीक है, so perform this action and then end if, this is a very simple। फर्स्ट इनपुट लेंगे, देन आपने कंपेयर करवाना है ज़ीरो से, वही नंबर ज़ीरो से अपना नंबर कंपेयर करवाओगे, अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएंगे, तब ऐसे ज़ीरो से अगर बड़ा होगा कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 5 नंबर ले लें, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, यस ट्रू, सो प्रिंट पॉजिटिव नंबर, ओके। एंड एल्स में वो जाएगा ही नहीं। देन इफ़ वी आर टेकिंग हियर अ -1, -5, -6, first we are taking okay only one number, then -6, okay, so -6 is greater than 0, okay, -6 is greater than 0, no, so
कम ऑन द एल्स पार्ट, दैट इज़ प्रिंट नेगेटिव, वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं बल्कि वो यहाँ पे आ जाएगा एल्स नेगेटिव पार्ट में, एंड देन एंड इफ। ओके, सो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर राइटिंग सूडो कोड। एंड इफ भी लिखना है, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो हम वहाँ एंड इफ नहीं लिखते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। एंड इफ तो होता ही नहीं वहाँ पे, खैर। सो यहाँ पे एंड इफ है। तो ये सूडो कोड के लिखने का स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल वी हैव, हेयर वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। अभी तक हमने सिर्फ 2 ऑप्शंस पढ़े हैं कि अगर ये ट्रू हो जाता है तो परफॉर्म करो ये वाला टास्क, अगर ये ट्रू नहीं होता तो परफॉर्म करो एस वाला पार्ट, ठीक है। सो बट वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन अ रियल लाइफ ऑल्सो। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें, स्टूडेंट ग्रेड निकालना है हमने, तो हमारे पास हम परसेंटेज की बेस पे निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज अगर हमारी 90 से अबव होती है या इक्वल होती है तो ए स्टार मिलता है, अगर 80 से अबव है या इक्वल है तो ए मिलेगा ग्रेड, अगर 70 से अबव है या इक्वल है तो बी मिलेगा ग्रेड, अगर 60 से अबव है या इक्वल है तो सी मिलेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 से अबव है या इक्वल है तो हमें डी मिलेगा, और 50 से बिलो है एल्स में चला जाएगा वो, दैट इज़ फेल, ठीक है। सो ये हमारा क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये करो वरना फिर ये करो, ठीक है। सो बट हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन, जैसे कि हमने ग्रेडिंग के डिस्कस किए, तो हमारे पास ए का भी है, स्टार का भी है, ए स्टार का है, ए का है, बी का है, सी का है, टी का है, फेल का है। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हमारे पास है एटीएम मशीन की एग्जांपल। एटीएम मशीन में हम जाते हैं, जब हम एटीएम में कुछ भी करने जाते हैं, मतलब पैसे विड्रॉल करवाते हैं या फिर बैलेंस फाइंड आउट करना होता है या फिर अपनी पिन चेंज करनी होती है या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है, कुछ पेमेंट करनी होती है। सो हम एटीएम में जाते हैं और हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास यहाँ पे हैं 8 ऑप्शंस, ठीक है। सो 8 ऑप्शंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू सूडो कोड बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कितने बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बटन्स हैं, 8 ऑप्शंस हैं हमारे पास टोटल। सो हम यहाँ पे इस तरह का सूडो कोड बनाएंगे। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे कि अगर हम ये बात करें कि अगर हम ये बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला टास्क परफॉर्म है, अगर हम ये वाला बटन प्रेस करें तो इसका टास्क परफॉर्म है, अगर हम ये वाला बटन प्रेस करें तो इसका टास्क परफॉर्म है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर पिन चेंज का बटन, दैट इज़ अ 7 बटन, ओके। so if we are clicking on the 7 button then क्या हो हमसे मांगे पिन चेंज करने का, ठीक है। मैंने कभी की नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह ही होगा कि कुछ वो हमसे या तो प्रीवियस पिन मांगेगा जो हमें याद ही नहीं होती, खैर वो पिन तो खैर इस तरह ही कुछ होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम जैसे कैश, हाँ कैश हम निकालते हैं, तो ये कौन सा बटन है, 8 7 6 5 5। इफ़ वी आर क्लिकिंग ऑन द 5th बटन, ओके, सो वो हमसे मांगता है क्या कि हमसे अमाउंट मांगता है जो हम थ्रू बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। सो हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर क्लिकिंग ऑन द विच ऑप्शन, दैट इज़ 8 7 6 5th बटन, ओके, 5th बटन, एंड देन परफॉर्म, देन ही बेसिकली वो हमसे क्या मांगे, वो हमसे मांगे इनपुट मांगे, अमाउंट मांगे, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिकली क्राइटेरिया कि अगर हम ये बटन प्रेस करें तो ये वाली चीज़ परफॉर्म हो, ठीक है। एज सिर्फ ये बटन प्रेस करें तो ये वाली चीज़ परफॉर्म हो, अगर ये बटन प्रेस करें तो वो वाली चीज़ परफॉर्म हो। सो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज सिर्फ की कहानी। इफ़ दिस बटन क्लिक सो परफॉर्म दिस टास्क, एज इफ this button then perform this task, as if this button click so perform this task, as if this button click, ठीक है। सो इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे एल्स इफ के ज़रिए, इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, एंड लास्ट में हमारा जो लास्ट बटन होगा वो भी एल्स इफ में जाएगा, और अगर हम इनमें से कुछ नहीं बटन प्रेस करें तो हम उसको एल्स में डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 ऑप्शन है, ठीक है। तो हो सकता है कोई यूज़र जो है वो 9 बटन 0 बटन प्रेस कर दे, ठीक है। सो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो हम एल्स में डाल देंगे, तो हम देखते हैं फिर उसके बाद ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सो हेयर वी हैव 1 2 3 4 ऑप्शंस मैंने लिए, ज़्यादा नहीं लिए, मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं। तो चेक बैलेंस का फर्स्ट ऑप्शन है,
फर्स्ट बटन अगर वो 1 नंबर प्रेस करे तो उसका बैलेंस शो हो, सेकंड बटन प्रेस करे तो वो अमाउंट डाले जो जितनी उसको विड्रॉल करवानी है, थर्ड बटन, ठीक है, थर्ड बटन अगर प्रेस करा तो वो डिपॉजिट अमाउंट एंटर करे, फोर्थ बटन कर रहा है तो वो क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा और कोई मैसेज शो करे। और अगर इनमें से कुछ बटन प्रेस नहीं कर रहा, मीन्स 5, 6, 7 बटन प्रेस कर दे अगर गलती से, ठीक है, सो क्या हो वो भी हम देख लेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एक चॉइस का वेरिएबल लिया है, हम चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छा वेरिएबल दैट इज़ बटन, बटन का ले लें, ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे चॉइस का लिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर लेती हूँ फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इफ़ फर्स्ट हमने चॉइस ली है कि वो बटन प्रेस करेगा, तो वो हमारा बटन क्या है, वो हमारा एक वेरिएबल है, हम हमेशा 1 तो नहीं प्रेस करेंगे, हमेशा 2 तो नहीं प्रेस करेंगे ना, तो इसीलिए वो वेरिएबल चेंज होता रहेगा, नंबर चेंज होता रहेगा, तो हमने उसको एक इनपुट में ले लिया, ठीक है, चॉइस में ले लिया। अब इसमें क्या होगा, आपका बटन नंबर आएगा जब वो हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा, तो आप यहाँ पे राइट करोगे या प्रेस करोगे 5 बटन, 4 बटन, 3 बटन, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल जिसमें आप बटन प्रेस करोगे, आप यहाँ बटन ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इफ़ चॉइस, इफ़ आपका जो वेरिएबल है अगर आप 1 प्रेस कर रहे हो तो क्या हो, 1 पे क्या है, चेक बैलेंस, तो प्रिंट होगा वहाँ पे योर करंट बैलेंस, और ये अमाउंट है, अमाउंट ये कहीं से आ रहा होगा डाटाबेस में से, ये एक वेरिएबल है जो आपका कोई डाटाबेस में से आपकी अमाउंट लेके आ रहा होगा, ठीक है, शो करने के लिए। सो ये हो गया, ठीक है। देन ये परफॉर्म हो टास्क एल्स इफ, अनदर ऑप्शन एल्स इफ में डालेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो हम उसको प्रोग्रामिंग, तो हम उसको सूडो कोड में क्या करते हैं, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ में डाल देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें जो लास्ट कंडीशन हो जाती है वो हमारी एल्स की हो जाती है, ठीक है, सिंपल है बहुत, ठीक है। सो देन परफॉर्म दिस टास्क एल्स इफ यूज़र एंटर 2 बटन, ठीक है। सो देन प्रिंट परफॉर्म, देन क्या होगा, कैश विड्रॉल, कितनी अमाउंट वो निकालना चाह रहा है, फर्स्ट क्या होगा, एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉल, ये एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, एंड देन आप इनपुट करोगे, आप उस बॉक्स में, जो बॉक्स बना हुआ आता है उसमें आप अमाउंट एंटर करते हो, लाइक 20,000 या जो आपने एंटर करनी है। सो वो क्या होता है, उस वक्त इनपुट दे रहा होता है, ठीक है, ताकि वो अंदर फिर प्रोसेस करे और फिर वो आपको अमाउंट निकाल के दे, ठीक है। सो वो आप क्या कर रहे होते हो, इनपुट ले रहे होते हो। सो ये टास्क परफॉर्म हो एल्स इफ अगर 2 हम प्रेस करें तो ये 2 स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट करें, ठीक है। एल्स इफ अगर कोई यूज़र जो है वो थर्ड करवाना चाह रहा है, यानी डिपॉजिट करवाना चाह रहा है अमाउंट, ठीक है, सो अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट से में भी डिपॉजिट करवाना चाहे किसी के अकाउंट में, ठीक है। सो क्या हो, फर्स्ट क्या होगा, वो ये मैसेज शो होगा कि एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, एंड देन आप वो अमाउंट डालोगे जो आप डिपॉजिट करवाना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है। सो यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, नंबर ऑफ अमाउंट कितनी आप एंटर करवाना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एल्स इफ चॉइस नंबर 4 दैट इज़ एग्जिट, एग्जिट का है। सो हमारे पास एग्जिट में क्या है, हम मैसेज शो करेंगे थैंक यू का, ठीक है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा मैसेज कर दें आप प्रिंट यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, इनपुट तो कुछ लेना नहीं है, बस उसने थैंक यू करना है, ठीक है। अब कोई यूज़र हो सकता है मे बी 5 बटन ये प्रेस कर दें, तो 5 बटन पे कुछ तो शो होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एस और प्रिंट करवा दिया है एंटर अ वैलिड चॉइस, आप कोई सही चॉइस, मतलब यहाँ पे जो शो हो रहा है उन्हीं में से आप कोई एंटर करें, ठीक है। तो आप कुछ और भी करवा सकते हैं। सो लास्ट कंडीशन इज़ एल्स, यहाँ पे एरर भी लिख सकते हैं, अक्सर जो प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ होता है इस तरह की कुछ स्टेटमेंट होती हैं कि एरर है या फिर
एंटर, कोई सही बटन एंटर करें, ठीक है। लास्ट इज एंड इफ, दिस इज नेसेसरी पार्ट जो आप सूडो कोड के स्टाइल में लिखते हैं तो एंड इफ करना होता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया इफ़ देन एल्स। अब इसी के ऑल्टरनेट में अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने इफ़ देन एल्स इफ जो है नहीं यूज़ करनी होती स्टेटमेंट, आपने एक और अनदर फॉर्म दैट इज़ अ केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, ये यूज़ करनी है। केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे जो सूडो कोड में हम पढ़ रहे हैं वो केस ऑफ है। इसमें भी अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, सो हम यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। जैसे ग्रेडिंग में, सो यहाँ अगर ग्रेडिंग में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि अगर फिर हम यहाँ लिखते हैं ऑप्शंस। बेसिकली आप क्या करते हो, इसको हम यहाँ एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं, जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी। इनपुट आपने चॉइस सेम एज इट इज़ वैसे ही लिया, ठीक है। इनपुट लिया और उसको केस में डाल दिया कि आपका जो चीज़ आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपका पास वेरिएबल है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसके फिर ऑप्शंस आप डायरेक्टली, ये ज़्यादा स्टेटमेंट इजी है, ठीक है। इसमें आपने ऑप्शंस लिख दिए यहाँ पे। फर्स्ट जो चॉइस थी, जो चॉइस नंबर 1 है, तो आपने 1 यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ग्रेड्स निकालने हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट क्या होगा आपका, आपने ग्रेड शो करने, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, आप यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट आपकी परसेंटेज आएगी, ठीक है। केस आपका परसेंटेज बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी बनेगी कि बिटवीन 80 till 90, ठीक है। और फिर परफॉर्म क्या टास्क हो, परफॉर्म हो, प्रिंट हो बेसिकली ए स्टार, ठीक है। इसी तरीके से 60 से लेकर 70, ठीक है, तो हो जाएगा 60 से 70 सी ग्रेड, ठीक है। सो इसी तरीके से हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक बनेंगे, वो एग्जैक्टली जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। खैर अभी तो हमारे पास ये वाला है। सो हमारी चॉइस थी, चॉइस में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम अपनी चॉइस जो है, हमारा जो ऑप्शन है हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो ऑप्शन के मुताबिक हमें चीज़ परफॉर्म करवानी है, जो टास्क परफॉर्म करवाना है, वो हमने यहाँ प्रिंट में डालना है। तो प्रिंट में हमने डाला है प्रिंट करंट चॉइस करंट बैलेंस, ठीक है। वही एग्जैक्टली बिल्कुल सेम एज इट इज़ डल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अगर प्रेस करें तो हमने सेकंड लिखा, और ये एग्जैक्टली आपका, ये आपका क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, आपने यूज़ ऐसे ही करने होंगे, कॉलन लगाना होगा। चॉइस लिखी और कॉलन इज़ नेसेसरी, केस लिखना है, ठीक है। और केस के बाद ये 1 कॉलन 1 तो आपका ऑप्शनल है, ये आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम होगा, ठीक है। एंड कॉलन इज़ नेसेसरी, कॉलन आपका कीवर्ड है, समझ लें आप, ठीक है। सो देन परफॉर्म अमाउंट एंड द सेकंड ऑप्शन that same as it is last pseudo code, enter the amount you want to withdraw, then input करवाओगे, then third option अगर क्लिक करें then enter print सबसे पहले हो enter the amount you want to deposit, and then क्या हो, input deposit हो, ठीक है, input हो बेसिकली सेम एज इट इज़ चल रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्लिक करें तो थैंक यू प्रिंट हो जाए। अदरवाइज़ ये एल्स की कंडीशन यहाँ पे आ गई कि अगर कुछ नहीं हो रहा यहाँ से बटन प्रेस और 5 6 7 8 9 0 कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो हमारे पास अदरवाइज, दिस इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। सो प्रिंट करे प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस, चीज़ लिख दिया मैंने, चॉइस है, ठीक है। सो एंड केस, ठीक है, एंड केस इज़ द रिप्लेसमेंट कह सकते हैं हम किसका, एंड इफ का, ठीक है। सो दिस वन इज़ नेसेसरी पार्ट। अभी एक मिनट इसको हाईलाइट हम कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका केस ऑफ आएगा, ठीक है। ये आपके कॉलन, okay. So here we have, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमें तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है एग्जैक्टली हमारा ये सिंटेक्स आप समझ लो, ठीक है। सिंटेक्स है हमारा बेसिकली,
और ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे, केस लिखा जाएगा एंड देन कॉलन कॉलन कॉलन, एंड आप अपने चॉइसेस यहाँ पे लिख सकते हो, आपका एक्शन परफॉर्म यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू चॉइसेस, ठीक है। एंड देन अदरवाइज केस होगा, जो कि लास्ट केस हमें लिखना ही होता है लाजमी, कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो ये बटन, ये वाली चीज़ हो जाए प्रेस, ठीक है, या प्रिंट हो जाए, ठीक है। एंड देन लास्ट इज़ एंड केस भी हमें लिखना ही है, ठीक है।